Good morning, students. So, in our previous class, we have already discussed gender and politics, religion and politics, different division of gender and division of religion. So, today we will read caste division, then caste and politics. So, before going to caste division, here is the two term. The first term is communalism and the second term is secular state. What is communalism? Here it is U, communalism, and what is secular state? So, first we discuss communalism. Here definition is given. It is a situation when a particular community tries to promote its own interest at the cost of other community. कम्युनलिज्म का मतलब यहाँ पे मैं बता दूं, जब कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियन दूसरे रिलीजियन को डोमिनेट करने की कोशिश करती है, then in that situation communalism arises. In any politics is to be guided by the values and the ethics of any religion. Politics में किसी भी रिलीजन के वैल्यूज होने चाहिए और एथिक्स होने चाहिए. मीन्स वैल्यूज एंड एथिक्स का मतलब क्या होता है? आदर्श. सभी रिलीजन में बहुत सारे आदर्श होते हैं. उन आदर्शों को यदि हम लेकर पॉलिटिक्स करें, सो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी रिलीजन. बट व्हेन वी मिस रिलीजन विथ पॉलिटिक्स, हम यदि रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करते हैं, then the problem arises. And when religion is seen as a basis of the nation, then communalism starts. तो यहाँ पे यदि मैं बता दूं कि what are the problem faced by any politics या religion. The next question arises, when does a communalism become a problem? Communalism कब किसी देश के लिए, किसी पॉलिटिक्स के लिए एंड किसी रिलीजन के लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है? The first one is, religion is seen as the basis of a nation when one religion and its followers discriminated by the other religions. The third one is when people believe that their religion is superior, and when the state power is used to establish the domination of one religion over others. These are 4 points. The first one is, जब religion राष्ट्र पर भारी पड़ जाता है, किसी देश पर रिलीजन भारी पड़ जाए, then communalism arises. Then यदि कोई एक religion या the followers of that religion or the people of that religion, they started dominating other people of other religion, then communalism arises. Third one, जब किसी पर्टिकुलर रिलीजन अपने आप को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर फील करता है, यस, द वैल्यूज, द मॉरल्स, द एथिक्स of my religion, of our religion is superior than other religion, that time communalism arises. And the last one is, when the state power is used, जब स्टेट की पावर मीन्स पॉलिटिक्स को इसके बीच में मिक्स कर दिया जाता है, देन वहां पर क्या होता है? वन रिलीजन स्टार्टेड डोमिनेटिंग अदर रिलीजन, एट दैट टाइम communalism become a problem. So here
we will discuss about communal politics. So the first point is people believe that their religion are superior to the ideas of other religions. People of a particular religion wants maximum representation of their religion in the politics. This take the form of majoritarian dominance as we see in the case of Sri Lanka. As a result of it, minority community then demand separate state for themselves. Mobilizing people on communal line in politics is another form of communal politics. Mobilization is done on the basis of emotional appeals, fear, symbols, religious slogans by the leaders. And the last one is, in its most ugliest form, communalism leads to violence. People from various religions are opposite to each other and they use violence to show their religion's dominance. इसको मैं आपको हिंदी में समझा दूं कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स कब अराइज होता है. द फर्स्ट वन इज जब पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के पीपल दूसरे कम्युनिटी के पीपल को डोमिनेट करने की सोचते हैं या दे फील सुपीरियर देन अदर, दैट टाइम कम्युनल पॉलिटिक्स अराइजेस. देन सेकेंड, जब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को दबाती है एंड पॉलिटिक्स में वो अपना एक बहुत मेजर रोल प्ले करना चाहती है. जस्ट जैसे मेजॉरिटी ऑफ पीपल, द पीपल हु बिलोंग टू दैट community, so that people of that community they dominate the minority group of people. In Sri Lanka, in our previous power sharing chapter, we have already discussed how the internal war created in Sri Lanka. Internal war, that is also called civil war. श्रीलंका में कैसे क्रिएट हुआ था? बिकॉज मेजोरिटी में कौन थे? सिन्हलास थे. एंड द सिन्हलास पीपल दे वर इन मेजोरिटी. ओके, एंड जो सिन्हलास पीपल थे they tried to establish their government. And minority में कौन कौन थे? Who were in the minority? On the Sri Lankan Tamilians as well as Indian Tamilian, and they wanted to make their government. And that time क्या हुआ था? बहुत सारे conflicts arises हुए थे and civil war started in Sri Lanka. तो जब मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे ट्राई टू डोमिनेट माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल, दैट टाइम माइनॉरिटी जो पीपल है दे डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट. So that time conflicts arises between majority group of people and minority group of people. Then second आ जाता है mobilizing people. Here mobilizing, what is the meaning of mobilizing? मोबिलाइजिंग मतलब इकट्ठा करना. तो मोबिलाइजिंग पीपल क्या करते हैं? मोबिलाइजिंग पीपल ऑन कम्युनल लाइंस इन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में अपने ही कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करते हैं. दे try to mobilize the people of the same community, then their religious symbols, and यदि उससे भी नहीं होता है fear, डराकर, they mobilize the people of the community. Then last है ये, it is the most ugliest form of communalism when it leads to violence. और जब ये क्रिएट हो जाता है, जैसे यहाँ पे वायलेंस क्रिएट हो गया था, it is the ugliest form of communalism. यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी. द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स. द फर्स्ट वन इज ड्यूरिंग
partition of India and Pakistan. India and Pakistan. The worst situation of communal politics during partition of India and Pakistan. जैसे ही इंडिया को 1947 में डिक्लेयर किया गया कि यस इंडिया जो है, इंडिया को आज़ाद किया जा रहा है, एट दैट टाइम इन हिंदूस एंड मुस्लिम्स, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन क्रिएट हो गए. क्यों टेंशन क्रिएट हो गए? बिकॉज हिंदूज एंड मुस्लिम, their representatives were actively participated in freedom struggle, isn't it? But when the Muslim felt that they are alienated by the Hindus, they were alienated by the Hindus, that time they thought कि we want freedom, that we should be separated from India. And that time हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों में जो है वायलेंस शुरू हो गया, स्ट्रगल शुरू हो गया, एंड मेनी इनोसेंट पीपल दे डाइड, एंड एट लास्ट इंडिया डिवाइडेड into two parts, that is India and Pakistan. India and Pakistan. It is only because of communal politics. ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर लोगों ने पॉलिटिक्स को कम्युनल रूप दे दिया था. ओके, देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज श्रीलंका. ओके, श्रीलंका में इसके पहले मैंने बताया था सिनलास जो थे वो मेजॉरिटी में थे, बट दे ऑलवेज डोमिनेट इंडियन तमिलियंस एंड श्रीलंकन तमिलियन, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम civil war started in Sri Lanka, and many people they migrated from Sri Lanka, or the many people they died, they lost their lives. So these two examples were the worst example of communal politics. Okay, next, that is secular state. Secular state, यहाँ पर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उन्होंने जब संविधान की रचना की तो उनके दिमाग में ये बात पहले से ही थी क्या कि वे भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय उन्होंने जो वायलेंस देखा था, एंड फॉर दैट रीज़न जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सबसे पहला उसमें उन्होंने आर्टिकल लिखा दैट देयर इज नो एनी ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया. इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा. ऑल रिलीजियंस आर इक्वल. ऑल रिलीजियंस आर गेटिंग इक्वल स्टेटस. जस्ट लाइक आपने देखा जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम्स जो है इस्लाम को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया गया था, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया गया था, एंड श्रीलंका में बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया गया था. बट इन इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिसाइडेड दैट देयर शुड बी नो एनी ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया. एंड मतलब यहाँ पे there is no any official religion in India. Okay, the next one is people are free to practice, to propagate and to profess. देखिए तीन वर्ड्स, पीपल आर फ्री टू
profess, practice and propagate. Triple P. Here triple P. Okay. Profess. Profess का मतलब है स्वीकार करना. Then second, practice. आप उस धर्म को जो है अपने जीवन में पालन कर सकते हो. I can practice all the rules, all the regulation and all the rituals of that religion. That is practice. And propagate. Propagate का अर्थ है मैं उस धर्म के प्रचार करने में भी फ्री हूं. यदि कोई व्यक्ति किसी रिलीजियन को फॉलो करता है तो उस रिलीजियन को वो प्रोफेस भी कर सकता है. यस, I belong to that particular religion. प्रैक्टिस भी कर सकता है एंड उसका प्रचार भी कर सकता है. Every people, each people are free. Then third one is the Constitution prohibits discrimination on the ground of religion. No discrimination. कोई भी रिलीजियन के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. All religions are equal because all religions are having values, ethics, good qualities. So no discrimination. All religions are equal. And the last one is untouchability का मतलब अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत. जैसे सपोज देयर आर टू ग्रुप ऑफ पीपल, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, इजंट इट? तो हमारे प्रीवियस जो है हिस्ट्री में आप यदि जाओगे, दैट टाइम यू सॉ द अपर कास्ट पीपल, they dominate lower caste people and the lower caste people were not allowed to enter in the society of upper caste people. In South Africa, we have already learned apartheid. That is a kind of untouchability, छुआछूत. yes, मतलब गोरे लोगों के समाज में जो अश्वेत हैं, जो काले लोग हैं, उनका जाना वर्जित था. ठीक इसी तरह इंडिया में लोअर कास्ट के जो पीपल हैं, दे वर नॉट परमिटेड टू एंटर और टू मिंगल विद द पीपल ऑफ अपर कास्ट. ओके, सो ये चार का जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य रूप से इनको जो है शामिल किया गया. क्यों? टू बिकम इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य. इसको हिंदी में यदि कहेंगे, इट इज धर्मनिरपेक्ष. यहाँ पर ये वर्ड जो है अपने आप में इसकी जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको जस्टिफाई कर रहा है. धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ पर कोई धर्म नहीं है. ऑल रिलीजन आर इक्वल. all religion should be equally treated by all the people as well as in our constitution. So now come to the next topic, that is caste. Here the caste problem, caste division is only present in India. India में ही caste division हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. So here caste को यहाँ पे social division, the division of caste कैसे किया जाता है? It is on the basis of by birth, या you can say accidental birth, and the second one is occupational structure. Accidental birth, here in other way
we can say hereditary. Hereditary मतलब if my ancestors belong to Hindus family and they were Brahmins or Kshatriya, then जो बाद की जितनी भी जनरेशन है they are Hindus and belong to that concerned group, Kshatriya और Brahmins. That is by birth. यहाँ पे आर्यंस का एंड नॉन आर्यंस ने चार जो है वर्ण में, कास्ट में लोगों को डिवाइड किया था. ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय, है ना, देन वैश्य, देन Vaishya, and then last one is Shudras, and the last one is Shudras. Okay, now come to the next topic, that is caste inequalities. Equal मतलब समानता, inequalities मतलब असमानता. कैसे जो है कास्ट में असमानताएं होती हैं. इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सपोज जो है देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ कास्ट, दैट इज अपर कास्ट एंड द सेकेंड वन इज लोअर कास्ट. ओके, सो the people belong to that particular caste. If the people belong to upper caste, they mingle or they marriage to the people of the same caste. And here in lower caste, the same cheese repeat, the people of the lower caste will get married to the same people of the people of the same caste. Then इसके बाद सोसाइटी में लोगों का आपस में शेयर करना, फीलिंग्स शेयर करना या उठना बैठना, देन बहुत सारे फंक्शंस होते थे. ऑल फंक्शंस इनका जो है अपने ही कास्ट तक ही सीमित रहता था एंड दे नेवर मिंगल विथ द पीपल ऑफ अदर कास्ट. लेकिन इसके अगेंस्ट में, कास्ट इन इक्वालिटीज के अगेंस्ट में, देयर वर सेवरल मेनी सोशल रिफॉर्मर्स like Mahatma Gandhi, then B.R. Ambedkar, then Phule Bhai. इन लोगों ने काफ़ी कुछ रोल प्ले किया टू रिमूव द कास्ट सिस्टम इन इंडिया. कास्ट सिस्टम मीन्स इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट सिस्टम. लेकिन इनके प्रयास से बहुत हद तक कास्ट सिस्टम रिमूव हुए, बट देयर are so many factors which remove caste system, and the first one is education, in which the first one is education, then the second one is literacy, the third one is urbanization. इन तीन पर मैं चर्चा करूंगी आपसे, कैसे जो है कास्ट इनइक्वालिटीज को जो है हम लोगों ने हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनके प्रयास से कई हद तक दूर किया गया है. द फर्स्ट वन इज थ्रू एजुकेशन. हाउ? एजुकेशन मीन्स दैट टाइम the people were not so much educated. लोगों में उतने ज़्यादा जो है पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे, एंड जब पीपल एजुकेटेड नहीं रहते थे तो
जो उनके जो लीडर्स है, द रिलीजियस पीपल और द लीडर्स ऑफ दैट कम्युनिटी अपने लोगों को जिस तरह की शिक्षा देते थे वो उस तरह का फॉलो करते थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने शिक्षा लेना शुरू की, लोग एजुकेटेड हुए, दे रियलाइज व्हाट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस एंड व्हाट इज the good practice, and education played a vital role to remove caste inequalities. Now come to literacy. What is literacy? So here literacy matlab when a person get educated, the literacy rate is automatically high, है ना, बढ़ जाती है। तो जैसे ही लोग लिटरेट हुए, लिटरेसी रेट देश में बढ़ी, लोगों ने सही चीज़ों को आंकना शुरू किया। उन्हें तब पता चला कि ये कास्ट सिस्टम जो है दैट इज ब्लैक मोल्ड ऑफ द कंट्री, एक धब्बे की तरह है, एंड एनी हाउ इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी एज वेल एज फ्रॉम आवर कंट्री। एंड द थर्ड वन इज अर्बनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन मतलब माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन सिटीज, अर्बन एरियाज। अर्बन मतलब फ्रॉम रूरल टू अर्बन। गांव के लोग जब शहर में जाने लगे, देन वहां पे क्या होने लगा? अर्बनाइजेशन होने लगा। और जब शहर में जो गांव के लोग जाते थे, दे फील दैट देयर नेबर, देयर फ्रेंड all belong to their family member, because जो हम अर्बन सिटीज में, अर्बन एरिया में the mentality of the people is broad, लोगों की जो सोच होती है वो ब्रॉड होती है, और जो हमारे पड़ोसी होते हैं वही हमारा रिलेटिव होते हैं, बिकॉज हमारे रिलेटिव्स गांव में हैं, एंड इन केस ऑफ एनी क्राइसिस फर्स्ट हु विल कम? My neighbor will come to help me. So यहाँ पर जब अर्बनाइजेशन हुआ, then again caste inequalities की जो feelings थी, it becomes faded. It becomes faded. So caste and politics. It is our last topic. The first one is choosing a candidate. Second, forming a government, and while the third one is while campaigning. Caste and politics, इन दोनों की क्या रिलेशन है? कैसे पॉलिटिक्स में कास्ट को इन्वॉल्व किया जाता है? द फर्स्ट वन इज चूजिंग अ कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन। कभी इलेक्शन के समय में जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैंडिडेट सेलेक्ट करना होता है, दैट टाइम they keep it in their mind to select a candidate which belong to a particular caste, and उस सोसाइटी में उस कास्ट की जो मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो मेजॉरिटी ऑफ कास्ट रहता है, दैट कैंडिडेट को वो क्या करते हैं? अपने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दे नॉमिनेट दैट कैंडिडेट फॉर देयर पॉलिटिकल पार्टी। व्हाई? टू गेन वोट्स, वोट जीतने के लिए, टू गेन वोट्स। देन द सेकेंड वन इज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। जब भी सरकार बनानी होती है, सरकार बनाते समय political parties they always keep it in their mind कि कम से कम we should think about the people of particular caste, उस कास्ट के जो लोग हैं उनके बारे में सोचा जाए, उनके हित के बारे में सोचा जाए। और जब भी गवर्नमेंट बनाया जाता है
कास्ट के जो पीपल है, डिफरेंट कास्ट के जो पीपल हैं, उनको भी उसमें बराबर की सीट दी जाती है। एंड द थर्ड वन इज वाइल कैंपेनिंग। कैंपेनिंग मतलब प्रचार के समय, ड्यूरिंग इलेक्शन जब कैंपेनिंग की जाती है, प्रचार किया जाता है, तो उसमें कास्ट की जो भावना है वो जरूर दी जाती है। यदि आप किसी कास्ट को अपील करते हो, किसके थ्रू? द कैंडिडेट ऑफ द सेम कास्ट। इफ द कैंडिडेट ऑफ द सेम कास्ट अपील फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, दैट टाइम वहां पे उस पॉलिटिकल पार्टी को उस कास्ट के थ्रू, उस कास्ट कम्युनिटी के थ्रू वोट्स बैंक बढ़ता है। सो ड्यूरिंग कैंपेन दे यूज देयर caste politics. So these are some points where caste mixed with politics, choosing a candidate, then second forming a government, and the last one is while campaigning. So students, आज हमारा ये चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट समाप्त होता है। होप आप लोगों को समझ आया होगा, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको सब्जेक्ट टीचर से क्लैरिफाई कीजिएगा, एंड प्लीज बी सेफ। थैंक यू।